Hello and welcome to my YouTube channel Scholars and Curious. And physics is obviously for curious ones. मैं मोनिका श्रीवास्तव आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सॉलिड स्टेट फिजिक्स वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में लेक्चर नंबर 11. This lecture is all for CSIR-NET, JRF, GET, IIT-JAM, etc. aspirants. And if you guys have not yet subscribed my channel, please do subscribe and please press the bell icon. And if you have already subscribed it, come and join with me. So in today's lecture, we will talk about temperature, heat capacity, specific heat of solids, etc. etc. the theories of specific heat capacities and the derivation of them. So let's start with temperature versus heat. Some people even cannot differentiate between temperature and heat. They assume both the same, but that is wrong. These two are specifically different quantities. There are many major differences between temperature and heat. So what are the differences? Let's discuss on that. Basically, what is temperature? Temperature is the measurement of the average kinetic energy of the particles in matter. तो friends and students, temperature जो है वो किसी मैटर में, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी की मेजरमेंट है. Like they have the particles have the kinetic energy, and if we can measure that energy, that is temperature. Okay, now what is heat? Heat is a form of energy. Heat is a form of pure energy. Heat is a form of total energy of any system. Like heat is a form of energy that flows from a warmer object to a cooler object. Heat energy की वो form है जो warmer object से cooler object की तरफ travel करती है, flow करती है. Okay, so this is the difference between temperature and heat. So you guys have always remember this thing. And now as we know that heat flows from warmer to cooler. Now can you answer these questions? A. When you touch ice, heat is transferred from? What will be the answer? Your hand to the ice or the ice to your hand? Obviously, you will check this one. Okay, because here we are talking about heat. And I've already told you guys that heat is the form of energy that flows from warmer object to the cooler one. Okay, now here hand is comparatively warmer object, so obviously. Now B, when you drink a hot cup of coffee, heat is transferred from? Obviously, you will check option number 2, the coffee to your mouth. It is quite easy. Okay, let's move ahead. There are some observation like different materials heat up at different rates. अलग अलग जो मटेरियल्स होते हैं वो अलग अलग रेट से गर्म होते हैं. ये आपको इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा. अगर आपने 1 kg ऑफ गोल्ड लिया है और 1 kg ऑफ एल्यूमिनियम लिया है और आप इन दोनों को गर्म कर रहे हैं, आपने एक साथ इनको हीट देना स्टार्ट किया, आपने रेट ऑफ गिविंग हीट भी सेम रखा है दोनों के लिए, पर आप देखेंगे कि गोल्ड है वो जल्दी गर्म हो जाएगा और एल्यूमिनियम जो है वो थोड़ा टाइम लेगा उतना ही टेम्परेचर गेन करने में, उतना ही गर्म होने में. तो ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला कि गोल्ड हीट्स अप अबाउट 7 times फास्टर देन एल्यूमिनियम. सो डिफरेंट मटेरियल्स हीट अप एट डिफरेंट रेट्स. द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज डिफरेंट मटेरियल्स स्टोर डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हीट एनर्जी. और एग्जाम्पल आपके सामने है. अगर आप 1 kg ऑफ गोल्ड को हीट देना स्टार्ट करेंगे, एट द सेम टाइम आप 1 kg ऑफ वाटर को हीट देना स्टार्ट करेंगे, तो वाटर टेक्स अबाउट 30 times लॉन्गर टू हीट देन गोल्ड. गोल्ड कंपैरेटिवली जल्दी गर्म हो जाएगा. दैट मीन्स वाटर स्टोर्स अबाउट 30 times मोर कैलोरीज. वाटर ज़्यादा टाइम ले रहा है गर्म होने में, तो वो ज़्यादा स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है. गोल्ड के कंपैरिजन में द ऑब्जर्वेशन इज 30 times, अप्रॉक्स 30 times मोर. ओके, नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी?
here is a definition of specific heat. What is specific heat? Specific heat is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of a substance to 1 degree Celsius. किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए हमें जितनी हीट रिक्वायर्ड है उससे ही हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं. दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अब आपको कुछ कन्वर्जन्स भी ध्यान होने चाहिए in the measurement of heat, like 1 calorie is equals to 4.184 joules. 1 joule 1000 joule equals to 1 kilojoule. 4184 joule equals to 1 kilocalorie or equals to 1 calorie. Means here we'll use capital C. Okay, just that. Now स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम और भी डेली लाइफ के एग्जांपल से समझ सकते हैं. कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए यहाँ लेकर आई हूँ. लाइक सम फूड्स रिमेन हॉट मच लॉन्गर देन अदर्स. ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि कुछ चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें भी कंपैरेटिवली ज़्यादा देर तक गर्म रहती हैं और कुछ खाने पीने की चीज़ें बहुत जल्दी ठंडी हो जाया करती हैं. सो दिस इज़ ड्यू टू their specific heat capacity. Or here are some examples like boiled onions are often too hot to eat while mashed potatoes. Yes, that is right. The filling of hot apple pie can burn your tongue while the crust will not when the pie has just been taken out of the oven. Yes, that's true. An aluminum foil covering can be peeled off with bare fingers right out of the oven, but be careful of the food beneath it. Yes, this is a good observation. हम जब माइक्रोवेव अवन में या किसी भी हॉट अवन में हम खाना रखते हैं तो हम देखते हैं कि हमने जो उस पर एल्यूमिनियम फॉइल चढ़ाया हुआ होता है, हम उसको तो हटाते हैं तो हमें हमारे हाथों में उतना गर्म नहीं लगता, हम उसको इजीली हटा लेते हैं. लेकिन जो उसके नीचे खाना होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा गर्म होता है. अगर हम उसको डायरेक्टली टच करने जाएंगे तो हमारा हाथ जल सकता है. ऐसा ही तब भी होता है जब जिस एल्यूमिनियम पैन में हमने खाना रखा होता है उस अवन में, वो पैन गर्म नहीं होता. उसको हम यूजुअली बेयर हैंड से उठा सकते हैं, उससे सर्व कर सकते हैं, बट उसमें जो फूड होता है वो गर्म हो जाता है. So this is all the examples, daily life examples of specific heat capacity. Some materials store more heat capacity comparatively than others, and the quantity of heat stored is also different for different materials. Now, different substances have different capacities for storing internal energy or heat. That is, I have already told you guys. A pot of water on a stove might require 15 minutes to be heated from room temperature to its boiling temperature. पानी से भरा हुआ कोई बर्तन स्टोव पे रखा हो तो वो अपने रूम टेम्परेचर से बॉइलिंग टेम्परेचर पे आने के लिए 15 मिनट्स लेगा. बट उतने ही मास का अगर आयरन रखा हो, उसी स्टोव पे रखा हो सेम फ्लेम के साथ, तो उसको मीन्स वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उतना ही टेम्परेचर गेन करने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे. और अगर यही काम आप सिल्वर के साथ करेंगे तो 1 मिनट से भी कम समय लगेगा. सो दिस इज द रीजन बिहाइंड ऑल दीज इज different substances have different capacities for storing internal energy or heat. A material requires a specific amount of heat to raise the temperature of a given mass a specified number of degrees, and the specific heat capacity of a material is the quantity of heat required to raise the temperature of 1 gram by 1 degree. That these two things I have already told you guys. So let's move ahead. Specific heats of solid की जो एक्सप्लेनेशन की गई, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग एक्सप्लेनेशंस दी थी. कुछ
क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग थी, कुछ मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग थी। क्लासिकल फिजिक्स यहाँ भी फेल हो गई थी, तभी हमें मॉडर्न फिजिक्स का सहारा लेना पड़ा। याद कीजिए, आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत कहाँ से करते हैं, हम शुरू करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो एक्सप्लेनेशन थी, दो एक्सप्लेनेशंस हैं, एक क्लासिकल एक्सप्लेनेशन है और एक क्वांटम एक्सप्लेनेशन है। क्लासिकली हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझा नहीं पा रहे थे, तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करना पड़ा और इस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो लोगों के सामने आई। इसी तरह जब स्पेसिफिक हीट्स ऑफ सॉलिड को समझाया गया तो जो क्लासिकल फिजिक्स थी वो यहाँ भी फेल हो गई थी और हमें मॉडर्न फिजिक्स के थ्रू इसको समझाना पड़ा था। सो ओनली ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज नॉट द familiar phenomena whose explanation requires quantum statistical mechanics. Another is the way in which the internal energy of solid varies with temperature. So this is the another thing for which we have to use the modern physics. Now we will start with classical explanation of a specific heat of solids. Classical explanation जिन्होंने दी वो दो साइंटिस्ट थे, सर पायरे लुई ड्यूलोंग एंड एलेक्सिस टेरेसे पैटिट। इन्होंने अपना लॉ दिया था, दैट इज रिनोन्ड ड्यूलोंग पैटिट लॉ। एंड हियर इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दैट। द ड्यूलोंग पैटिट लॉ is obviously based on classical physics, जो कि 1819 में प्रपोज किया गया। तो आप ये मान के चलिए कि मैं कितने साल पुरानी बात कर रही हूँ। तो जो भी एक्सप्लेनेशंस इस लॉ में हम पढ़ेंगे आज, वो सब लगभग 201 साल पुरानी हैं, तो उस हिसाब से ही हैं। ठीक है, तो जस्ट हम ये पढ़ेंगे कि इस थ्योरी में क्या था और कहाँ पर जाकर ये फेल हो गई और हमें क्यों मॉडर्न फिजिक्स के थ्रू एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ी। So the law states the classical expression for the molar specific heat capacity of certain chemical elements. For certain chemical elements, ये first limitation तो यही चल रही है, for certain chemical elements, not for all the elements. Experimentally, the two scientists had found that the heat capacity per weight for a number of elements was close to a constant value. एक constant value के close आ रही है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर वेट की वैल्यू किसी भी मटेरियल के लिए, एंड आफ्टर इट हैड बीन मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर रिप्रेजेंटिंग द प्रीज्यूम्ड रिलेटिव एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट. These atomic weights had shortly before seen suggested by Dalton. इस लॉ में, ड्यूलोंग पैटिट लॉ में क्या बोला गया कि किसी भी सॉलिड मटेरियल की जो हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे हम, क्योंकि जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को काम में लेते हैं. तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है अकॉर्डिंग टू ड्यूलोंग पैटिट लॉ इज अ कांस्टेंट वैल्यू ऑलवेज फॉर ऑल द सॉलिड मटेरियल्स. तो ये कांस्टेंट वैल्यू जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर वेट. ठीक है, और इसको जो वेट्स, एटॉमिक वेट्स थे जो डाल्टन ने सजेस्ट किए थे उसके अकॉर्डिंग समझाया गया था. ऑब्वियसली ये बहुत पुरानी थ्योरी है, तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं. सो वी आर स्टार्टिंग हियर द क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट विच इज ड्यूलोंग पैटिट लॉ. It is important in the study of condensed matter. This is another example that classical kinetic theory cannot provide answers that agree with experimental observation. So basically ये एक example है कि classical kinetic theory जो है
वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस नहीं भी दे सकती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस आ रहे थे हमारे पास, अब जो आते हैं एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, उनको ये क्लासिकल थ्योरी तो डिफाइन कर ही नहीं पाई थी। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है। Dulong and Petit observed in 1819 that the specific heat capacity at constant volume of all elementary solids is approximately 2.49 into 10 to the power 4 joule kilomole inverse Kelvin inverse, that means 3R। ये कांस्टेंट वैल्यू जो है वो आ रही थी अकॉर्डिंग टू Dulong and Petit, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर for all elementary solids. Dulong and Petit's result can be explained by the principle of equipartition of energy via treating every atom of the solid as a linear oscillator with 6 degrees of freedom. Dulong और Petit का जो लॉ है वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से के यूज से एक्सप्लेन किया गया था। और इसमें क्या किया जाता है, हर एटम को, सॉलिड के हर एटम को लीनियर ऑसिलेटर मान लेते हैं, और हर एक लीनियर ऑसिलेटर के जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो हम 6 मान लेते हैं। एक्स डायरेक्शन मींस पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, वाई डायरेक्शन पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, जेड डायरेक्शन पॉजिटिव जेड नेगेटिव जेड। Next point is extensive studies show that the specific heat capacity of solid varies with temperature, becomes zero at the temperature approaches zero। Actually experimentally क्या आया, देखिए Dulong Petit law के according specific heat capacity जो थी CV, वो टेम्परेचर के साथ जो ग्राफ दे रही थी वो था ये, जो कितनी वैल्यू है 3R, मतलब यहाँ है 3R, ठीक है, ये 0.3R है, ये आ रहा है Dulong Petit law के अकॉर्डिंग। बट एक्सटेंसिव स्टडीज क्या शो करती हैं, एक्सटेंसिव स्टडीज ये शो करती हैं कि सीवी और टेम्परेचर का जो ग्राफ है वो जब हम रूम टेम्परेचर, अगर आप मान लीजिए यहाँ है और उससे जीरो की तरफ बढ़ते हैं, तो जब जीरो की तरफ जाते हैं टेम्परेचर कम करते हैं तो ये वैल्यू वेरी करती है, डिक्रीज होती है, और जब हम जीरो पे पहुंचते हैं तो ये वैल्यू भी जीरो हो जाती है। यानी एक्चुअल में ग्राफ ऐसा आता है, कुछ इस तरह से आता है हर एलिमेंट का ग्राफ। तो दीज आर द एक्सटेंसिव स्टडीज, और इसीलिए तो Dulong Petit का लॉ रॉन्ग प्रूव हुआ ना। Now 6th point is specific heat capacities of certain substances such as boron, carbon and silicon are found to be much smaller than 3R at room temperature। और ये भी पता चला कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज थी कुछ सब्सटेंसेस की, उनमें से क्या थे, बोरोन, कार्बन और सिलिकॉन थे, उनकी रूम टेम्परेचर पर भी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी वो 3R से कम आ रही थी। मींस रूम टेम्परेचर पर भी इनके लिए तो Dulong Petit लॉ के रिजल्ट्स मैच ही नहीं किए। 7th पॉइंट था कि द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स एंड थियोरेटिकल प्रेडिक्शन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू थ्योरी। सो देयर आर सम डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एक्सपेरिमेंट रिजल्ट एंड थियोरेटिकल प्रेडिक्शन ऑफ Dulong Petit। तो जब डिस्क्रिपेंसी थी तो हमें जरूरत पड़ी एक नई थ्योरी की, hence the development of new theory started। Now according to Dulong Petit law, जो हमारी इंटरनल एनर्जी होगी पार्टिकल की वो क्या होगी, 3n kBT which is equal to 3n RT as you guys know, and molar specific heat क्या हो जाएगी इस तरह से, molar specific heat 1/n means per mole del U over del T at constant V। मैंने बताया कि हम सॉलिड्स के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालते हैं। अगर आप इसका वन टाइम डेरिवेटिव करेंगे और n से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा 3R वैल्यू। यही Dulong Petit लॉ का जो है वो फाइनल रिजल्ट है। और 3R वैल्यू का मतलब हो गया कि जो CV और K में जो ग्राफ है, यानी ये वाला जो ग्राफ है, ऐसा जो ग्राफ है वो क्या आना चाहिए, कुछ इस तरह आना चाहिए 3R, मतलब 3R वैल्यू अगर यहाँ है तो वो ऐसा आना चाहिए कांस्टेंट, ठीक है, बट ऐसा नहीं आता। दीज आर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अगर हम सिलिकॉन की बात करते हैं तो ये ग्राफ ऐसा आता है, जर्मेनियम की बात करते हैं तो ये ग्राफ ऐसा आता है। इसका मतलब Dulong Petit लॉ क्या है, यहां पर फेल हो जाता है, एंड अगेन क्वांटम मैकेनिक्स इज नीडेड। सो बेसिकली Dulong Petit लॉ इज द क्लासिकल ट्रीटमेंट ऑफ हीट कैपेसिटी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो 3R वैल्यू आ रही है CV की वो कहाँ से आ रही है। द फर्स्ट अप्रोच टू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स इज वाया Dulong Petit लॉ।
It uses the classical treatment as in gases. According to classical laws, a non-interacting particle will be having half kBt energy associated with each degree of freedom. जैसा कि अभी कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े थे अबाउट ड्यूलोंग पैटिट लॉ, उनमें से एक पॉइंट ये भी था कि हम ड्यूलोंग पैटिट लॉ को इक्विपार्टीशन द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का यूज करते हुए समझाने की कोशिश करेंगे, और ऐसा ही ड्यूलोंग एंड पैटिट ने किया था. सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल लॉज एंड दैट लॉ, कोई भी नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल होता है उसके हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ 1/2 kBt एनर्जी एसोसिएट रहती है. ये आपने 11th स्टैंडर्ड में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स में पढ़ा है, जरूर पढ़ा होगा. और इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का रूल भी आप 11th से ही पढ़ते हो. तो दिस इज हाफ kBt ऑफ एनर्जी फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम. एंड फॉर अ कंटेनर हैविंग n naught particles each having 6 degree of freedom, like 3 for potential energy and 3 for kinetic energy, what we are getting the expression of total energy as n naught into 6 into half kBt. n naught particles हैं, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी कितनी है, हाफ kBt है. तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलता है, टोटल एनर्जी का जो फॉर्म मिलता है या इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्म मिलता है वो मिलता है 3 n naught kBt. Now, what is specific heat? Specific heat का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, दैट इज CV इक्वल्स टू del E over del T एट कांस्टेंट V. ये आपको याद रखना है. तो आपको क्या करना है, जस्ट इस ये जो एक्सप्रेशन है E का, इसका 1 टाइम टेम्परेचर के साथ डेरिवेटिव कर लीजिए, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको मिलेगा 3 n naught kB. यहाँ हम मोलर स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं, इसलिए ये जो n naught है ये एवोगाड्रो नंबर है, दैट इज Na, जो कि कितना होता है दोस्तों, ये होता है 6.023 इंटू 10 to the power 23 एटम्स पर मोल. ठीक है, ये आपने जरूर पढ़ा है, आपको याद भी होगी ये वैल्यू, और इसी का हम यूज कर रहे हैं. और जब Na और इंटू kB होता है तो ये कांस्टेंट वैल्यू बनती है, उसको हम R से डिनोट करते हैं, और यहाँ R क्या हो गया, n naught kB या Na kB, एवोगाड्रो नंबर इंटू बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और जो R होता है दैट इज गैस कांस्टेंट हियर. ठीक है, इसकी भी वैल्यू आपको पता है, आपने पढ़ा है गैस कांस्टेंट के बारे में. तो ये आ गया आपका 3R. तो CV इक्वल्स टू 3R. जब 3 इंटू R की वैल्यू रख देते हैं तो कैलोरी में आपकी क्या वैल्यू आती है, 5.97 किलो कैलोरी पर किलो मोल केल्विन. सो दिस इज व्हाट ड्यूलोंग पैटिट लॉ सेज. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा. Now, Dulong and Petit found that indeed CV is approximately equals to 3R for most solids at room temperature and above, and hence is known as Dulong-Petit law in their honor. However, the Dulong-Petit law fails for such light elements as boron, beryllium and carbon as diamond. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. For which CV equals to 3.34. देखिए ये जो है बोरोन, बेरिलियम और कार्बन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू है जो एक्सपेरिमेंटली निकाली हुई है. क्या ये मैच करती हैं ड्यूलोंग पैटिट लॉ के रिजल्ट से? नहीं मैच कर रही. देखिए CV इक्वल्स टू 3.34, 3.85 एंड 1.46 किलो कैलोरी पर किलो मोल केल्विन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेटली एट रूम टेम्परेचर ना. इवन वर्स, the specific heats of all solids drop sharply at low temperatures and approaches zero as T approaches 0 Kelvin. ये हमने देखा, अभी सिलिकॉन और जर्मेनियम का एग्जांपल लिया था पीछे. अभी यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे कार्बन. यहाँ तक तो ठीक है. अब ये क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, और जब टेम्परेचर 0 केल्विन पर पहुंच रहा है, ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी 0 पर पहुंच जा रही है. और ऐसा ही सबके साथ हो रहा है. देखिए सिलिकॉन का ये रहा, ये एल्यूमिनियम का रहा, ये लेड का रहा, मीन सबके साथ ऐसा ही हो रहा है. तो इसकी एक्सप्लेनेशन तो ड्यूलोंग पैटिट कर ही नहीं पाए. सो क्लियरली समथिंग इज रॉन्ग विद द एनालिसिस. Obviously we know that something is wrong with that analysis, और इसी के लिए ड्यूलोंग पैटिट लॉ को फेल्योर करार दिया गया और हमें मॉडर्न थ्योरी की ज़रूरत पड़ी. इसके लिए आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी दी थी, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे. और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर्स के CSIR-NET गेट के प्रॉब्लम्स भी लेकर आऊँगी. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज. Please like, subscribe and share to your friends. Keep working hard. Stay home. Stay safe. Thank you.